Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So students, this is our first introductory class of subject science of class 8. So students, today we are going to start the first chapter of science, which is crop production and management. So students, basically in this chapter we are going to study that how crops were produced and how they are got managed during production. So students, why do we need food? We need food because it acts as the fuel for the body, just like the petrol. गाड़ी को भी पेट्रोल की ज़रूरत होती है ताकि वो चल सके, which is called the fuel for the car. वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी फूड की बहुत ज़रूरत होती है, जो हमारे बॉडी को फ्यूल देता है. जैसे कि हम बोल सकते हैं फ्यूल फॉर द बॉडी and it helps to carry out all the functions of our body. Okay students? So students, so हम लोग को फूड से क्या मिलता है? In the previous classes you study about the nutrition, that what is nutrition, what is nutrients, and how it helps us for carrying various functions. So we get nutrients from food, which helps us for carrying various functions such as for growth, maintenance and repair of our body. It also helps us to perform daily activities like eating, walking, playing, studying, etc. तो फूड हम सबको किस तरीके से हेल्प करता है? हमारे ग्रोथ मतलब जैसे कि हम बढ़ सके, हम लोग बड़े हो सके, हमारे ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी को मेंटेन करने के लिए. रिपेयर मतलब अगर कुछ हम लोग को डिजीज़ हो जाए तो उससे हम लोग को रिपेयर करने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत होती है. तो फूड से हम लोग को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलती है? तो न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है? जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स. ओके, सो दीज आर ऑल बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट द डेली एक्टिविटीज़. ओके, सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़. जैसे कि हम लोग को बहुत हेल्प करता है, जैसे कि चलने में हेल्प करता है, खेल कूद करने में हेल्प करता है, पढ़ाई करने में हेल्प करता है. इस तरीके से फूड हम लोग को बहुत हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस ऑफ बॉडी सच लाइक डाइजेशन, respiration and excretion. So students, what is digestion? The process by which our body digests the foods which is called digestion. जिस तरीके से हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में जाके, जो प्रोसेस होता है डाइजेशन के वक्त, डाइजेस्ट ऑफ द फूड के वक्त, उसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन. और आप सब पिछले क्लास में ये पढ़े होंगे कि कैसे डाइजेशन होता है, और न्यूट्रिएंट्स का जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है डाइजेशन. So and it also helps us to carry respiration. Respiration means the inhale and exhale of air or oxygen which we intake and in exhale, which this process is mainly known as respiration. What is excretion? The removal of the waste products from our body is known as excretion. Okay students, it also helps us to build our immune system strong, which helps us in fighting against diseases. So students, फूड कैसे हम लोग को हेल्प करता है? फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम लोग के बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि हम कोई डिजीज़ेस अगर हम लोग को हो तो हम लोग उससे फाइट कर सके. ओके, सो हियर you all know that plants can make their own food themselves by the process of photosynthesis. Which you already studied in your previous classes, that plants make their own food by the process of photosynthesis. So what is photosynthesis? The process by which plants make their own food is known as photosynthesis. They may generally make their food with the help of sunlight, chlorophyll, water, minerals from the soil and various other things. Okay, ये सब आप पढ़े होंगे कि photosynthesis
की जो प्रोसेस है उससे प्लांट्स अपना तो खाना बना लेते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे डिपेंड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल requirements. Okay, so students, this also you have studied in your previous classes, that what are the two sources of food we got and we eat. So the first one is plant sources. The food products which we get from plants are known as plant sources. For example, wheat, pulses, fruits, etc. And second one is animal sources. The food products which we get from animals are known as animal sources. Okay, just like example, milk, eggs, chicken. तो हम लोग बेसिकली दो तरीके का दो सोर्सेस ऑफ फूड हम लोग बेसिकली खाते हैं. तो एक क्या है? प्लांट सोर्सेज. जो भी फूड प्रोडक्ट्स हम लोग को प्लांट से मिलता है उन्हीं को बोला जाता है प्लांट सोर्सेज. जैसे कि वीट, पल्सेस, फ्रूट्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स, oil seeds. There are various types of products which we get from plants. Those are known as plant sources. And the animal sources, like जो food products हम लोग को animal से मिलते हैं उन्हीं को बोला जाता है animal sources. जैसे कि milk, egg, chickens, these are all known as animal sources. So students, this is a very interesting part of this chapter. You all know that we all in this whole world, we all have a vast huge number of population. You know that this world population is basically 7.8 billion people, and the Indian population is the 17.7%, I think so, of the world population. So how food is going to provide? So how food is provided to this large number of people? So इतनी बड़ी तादाद में, जनसंख्या में कैसे इतने सारे खाद्यों का उत्पादन होता है और कैसे इतने सारे लोगों के पास खाना पहुंचता है, तो हम अभी वही पढ़ेंगे कि कैसे ये सब होता है. तो इन द ह्यूज पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाउ फूड इज़ प्रोवाइडेड टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो इतने बड़ी तादाद की जनसंख्या में, पूरे विश्व में इतने बड़ी तादाद की जनसंख्या में खाद्य का कैसे हम लोग सबको को प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे सबको तक पहुंचा सकते हैं. सो उसका आंसर क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो हम लोग को उत्पादन का, जो खाद्य उत्पादन का जो एक प्रक्रिया है, उसको हम लोग को रेगुलर करना है. मतलब रोज़ाना उसको हम लोग को वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है. जैसे कि रोज़ हम लोग को कुछ ना कुछ खाद्य का फसल उगाना है, खाद्य का प्रोड्यूस करना है. प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना है. जैसे कि अगर कोई क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट भी करने का ज़रूरी है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी बहुत ज़रूरी है. उसके बाद वो जो हो जाता है मैनेजमेंट, तो उसको कैसे बांटना है इतनी सारी जनसंख्या में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी लार्ज स्केल. तो दैट्स वाई इतने सारे खाने को बहुत एक बड़ी तादाद में हम लोग को प्रोड्यूस करना होता है. इसीलिए बहुत सारे लोगों में, ताकि खाना पहुंच सके, और सभी इसी से सरवाइव करते हैं. सो दिस चैप्टर इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द टॉपिक एग्रीकल्चर. तो इतने सारे जनसंख्या को खाद्य उत्पादन जो होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर. So what is agriculture? Cultivating soil for growing crops and nurturing animals to provide food and other products is termed as agriculture. तो agriculture का क्या मतलब है? Cultivating soil for growing crops उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए जो soil में हम लोग, मिट्टी में हम लोग जो कल्टीवेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और नर्चरिंग एनिमल्स, मतलब कि जैसे कि हम लोग प्लांट सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं, और एनिमल्स को भी देखभाल करके हम लोग एनिमल्स से भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मिलता है. तो दोनों का ही एक एग्रीकल्चर हो सकता है. ठीक है, तो इन्हीं दो को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं. नाउ वी विल स्टडी द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? तो agriculture plays a vital role in the economy. So you must all know that
Mahatma Gandhi has told that agriculture is the बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का एक बैकबोन है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 70% से भी ज़्यादा लोग कृषि काम से युक्त हैं। मतलब वो उन लोग का जो डेली जीवन है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो लोग किस पे निर्भर करते हैं? यही खेती बाड़ी में निर्भर करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो इंडिया का बैकबोन, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन क्या है? ये एग्रीकल्चर है। और ये वो जो फसल उगाते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसी से हमारा देश अपना पैसा कमा रहा है, और इसी से सारे किसानों का घर भी चल रहा है। तो इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट। हम लोग के जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक रैंकिंग होता है कि कौन सा देश में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, तो इंडिया वहाँ पे दूसरे स्थान पर है। It also contributes about 70% of the total GDP। तो वो इंडिया 70% टोटल GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये आप बड़े हो जाने के बाद ये हायर क्लासेस में यू विल नो अबाउट दिस, बट अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यू ऑल मस्ट नो दैट इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 70% टू द टोटल GDP। हियर देखिए, almost 70% of the Indians population depends on the agriculture sector for their livelihood। मैंने अभी आप लोगों को कहा कि लगभग 70% के जो इंडियंस के जो जनसंख्या है, 70% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। मतलब वो किसान हैं, वो यही खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला रहे हैं। तो इट ऑल्सो गिव्स अ स्टेबल फूड सिक्योरिटी। और ये एग्रीकल्चर जो है, ये हम लोग एक स्टेबल फूड सिक्योरिटी भी देता है कि हाँ, ये जो हम लोग जब उत्पादन कर रहे हैं, फसल का जो उत्पादन कर रहे हैं, हमारा जो खाने का, इसमें कोई और रोक टोक नहीं होगा। हम लोग निश्चिंत रहेंगे कि हम लोग को ज़रूर खाना मिलेगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर हो रहा है, फूड का उत्पादन मतलब क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है। It also provides raw materials for various industries like sugar industry, jute industry, etc. ये जो raw materials जैसे कि sugar industry है, तो वहाँ पे sugar making के लिए obviously it will need sugar cane or something like this। तो इसी के लिए ये जो बहुत सारे किसानों के पास जो raw materials होते हैं, तो वो अपना raw materials ही इंडस्ट्रीज़ को दे के वो लोग अपना एक पैसा कमाने का जरिया हो जाता है उनका। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत कहाँ से है, यही हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो टिल 10,000 BC, मतलब बिफोर, BC का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। तो 10,000 साल या फिर 10,000 साल बिफोर क्राइस्ट, मतलब उससे भी पहले वो लोग पीपल वे नोमैडिक। मतलब वो क्या करते थे? ये सब एग्रीकल्चर नहीं करते थे। वो क्या करते थे? दे वेर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक ग्रुप, अपना एक थोड़ा सा ग्रुप, छोटा सा ग्रुप बना लेते थे, और प्लेस टू प्लेस मतलब यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ पे रुके तो फिर यहाँ पे थोड़े दिन रुके, खाना वाना खाए, और फिर दूसरी जगह चले गए। मतलब वो एक ही जगह में जैसे घर बना के हम लोग जैसे रह रहे हैं, वो नहीं रहते थे। वो हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। किसकी तलाश में ट्रैवल करते थे? फूड और शेल्टर की तलाश में। तो दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो क्या खाते थे? कच्चा सब्जी, कच्चे फल, ये सभी खा के रहते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। एंड उसके बाद वो क्या करना शुरू किए? शिकार करना शुरू किए एनिमल्स का खाने के लिए। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स। तभी से उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हंटर गैदरर्स, जो हंटिंग करते हैं और फूड गैदर करके अपने सर्वाइवल के लिए ये काम करते हैं। तो बिकॉज दे डज हंटिंग एंड गैदरिंग टू सर्वाइव। ओके, इसी हिसाब से उनका नाम पड़ा हंटर गैदरर्स। सो लेटर दे वुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। और बाद में जाके जब वो थोड़ा विकसित हुए, थोड़ा उनमें थोड़ा उन्नति हुआ, तो तब जाके वो लोग धीरे धीरे कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है, जो एग्रीकल्चर है, वो
शुरू करने लगे। फर्स्ट से राइस से शुरू किए, धीरे धीरे वीट से शुरू किए, ऐसे दूसरे क्रॉप्स के ऐसे इसी तरीके से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। ये आप बुक में अच्छे से पढ़ लेंगे। So now we will study about the main term which is called crop. So what is crop? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अगर जब भी कोई एक सेम काइंड ऑफ प्लांट, जैसे कि सोच लो राइस या फिर वीट सोच लो, एक ही जगह पे बहुत लार्ज स्केल में बहुत बड़ी तादाद में अगर कल्टीवेशन वहाँ पे हो रहा है तो उसी को क्या बोला जाता है? क्रॉप। ठीक है, जैसे कि क्रॉप क्या है? फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब एक जो फील्ड है उसमें सिर्फ वीट का क्रॉप्स हो रहा है, बहुत लार्ज स्केल में वो कल्टीवेशन हो रहा है। तो क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? यही है। तो वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो स्टूडेंट्स सी हियर दैट सीरियल्स किसको बोलेंगे? जैसे कि वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा, दीज आर नोन एज सीरियल्स। पल्सेस, राजमा, मूंग, ग्राम, अरहर एक्सेट्रा, so these are known as pulses. Fruits you all know, vegetables you all know, these are all types of crops. Okay, so spices is also a type of crop, like ginger is also cultivated. Cardamom, which is in Hindi known as इलायची, black pepper जैसे कि काली मिर्च, ये सब का उत्पादन होता है। तो ये सब एक एक तरीके के क्रॉप्स हैं। प्लांटेशन मतलब एक बड़ी तादाद में अगर कोई ट्रीज का कल्टीवेशन हो, वो भी एक क्रॉप है। जैसे कि कोकोनट, कॉफ़ी, टी एक्सेट्रा, ये दीज आर ऑल a type of crops. Like flowers are also known as crops because बहुत जगह आप देखे होंगे बहुत बड़ी तादाद में फ्लावर्स को उगाए जा रहे हैं और उसके बाद उन्हीं को हम लोग को बेचा जा रहा है और वही फ्लावर्स से हम लोग डेकोरेटिंग का काम कर रहे हैं, कभी पूजा दे रहे हैं, भगवान जी को पूजा देने के लिए भी लगता है। तो वो सब फूल कहाँ से आते हैं? वो फ्लावर को भी क्रॉप्स बना के कल्टीवेट करते हैं, वहीं से इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों को फ्लावर्स सप्लाई होता है। तो ऑयल सीड्स इंक्लूड सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट। मस्टर्ड का भी कल्टीवेशन होता है जहाँ से हम लोग को मस्टर्ड ऑयल मिलता है और उसके लीव्स हम लोग खा भी सकते हैं। शुगर क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड शुगर बीट। शुगर केन इतनी बड़ी तादाद में कल्टीवेट हो रहा है, इसी की वजह से हम लोग को शुगर खाने को मिल रहा है। सो दैट फाइबर क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, ये भी बहुत सारे बड़ी तादाद में कल्टीवेट किया जा रहा है, इसी से हम लोगों को कपड़ा मिल रहा है, इसी के बने हुए कपड़े हम लोग पहन पा रहे हैं। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली मेडिसिनल क्रॉप्स, हम लोग जो बोलते हैं ना कुछ आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं, तो ये सब कहाँ से बन रहा है? तो वो मेडिसिनल जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो उसका कल्टीवेशन करते हैं, जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा, इसी का कल्टीवेट करके वो लोग क्या बनाते हैं? मेडिसिनल क्रॉप्स बनाते हैं। Okay students, I hope you all understand this. So students, do all the notes in your fair copy except the history of agriculture. जो history of agriculture अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये बुक में आपको मिलेगा, आप इसको कॉपी में नहीं उतारेंगे और बाकी जो भी नोट्स है वो सब आप अपने फेयर कॉपी में उतारेंगे, ठीक है, लिख लेंगे। लर्न ऑल द नोट्स एंड रीड द चैप्टर थॉरली। ओके स्टूडेंट्स, ये नोट्स जितने भी हैं आप सब अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और चैप्टर मैंने जितने तक पढ़ाया आप बहुत अच्छे से उस चैप्टर को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट यू कैन आस्क मी, आई एम श्योरली क्लियर योर डाउट्स। अगर आपको बाद में कोई भी डाउट हुआ आप मुझे बोलिए, मैं आपका डाउट फ़ौरन क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तब तक आप अच्छे से ये चैप्टर को पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे आशा है कि मैं आप सबको ये साइंस का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सब इसको पढ़िए। सो द रिमेनिंग चैप्टर वी विल बी डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो टिल देन स्टडी दिस चैप्टर, लर्न ऑल द नोट्स, so we will soon meet in our next class.